Okay. Once again, good evening, everyone. Let's start. So, हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक. इन थर्मोडायनेमिक टुडे आई विल एक्सप्लेन थ्री more important subtopics of this thermodynamic. First one is what? Internal energy. It is represented by capital U. Otherwise, somewhere you can see this capital E also. That is the representation of the internal energy. And second, we will discuss about the first law of thermodynamics. And then we discuss about what? Enthalpy. It is represented by this capital H. So I will try to cover these three sub concepts: internal energy, first law of thermodynamics, and enthalpy. Okay. Okay. So one by one, I will explain this. First one is what? Internal energy. So in this internal energy, what do you mean by this internal energy? When I'm using this word internal energy. Okay. So what is the internal energy? What is this capital U? Right. So actually, this internal energy is what? We can say that every substance, when we discuss about the substance, that it is what? It is associated with the definite amount of energy, right? And this energy is what? Stored in the substance, which is called what? Internal energy. So look at here. Internal energy in the sense what? When I'm considering any system, any substance, then this substance is having some definite amount of energy due to their particle, due to their movement of particles, due to the bonding between this particle, right? Everything related to this energy. जैसे ये पार्टिकल मूव कैसे कर रहे हैं इसके अंदर, या फिर ये पार्टिकल में आपस में बॉन्डिंग कैसे है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे बाइंड है. All this kind of energy is considered what? Internal energy. So can say that here can say that every substance associated with some amount of energy, right? Which is called what? Internal energy. So can say that every substances, right, is associated with a definite amount of energy, right? Associated with the definite amount of energy. Energy, right? So internal energy of the system is what? Made up by what? Kinetic energy as well as the potential energy, right? So we can say that internal energy is made up by what? Two types of energy, like that: kinetic energy plus potential energy. So this internal energy U is the combination of kinetic energy plus potential energy. Now question arises that what is this kinetic energy and what is this potential energy? So actually this kinetic energy is what? Due to the movement of particle, right? For example, if I'm going to explain this kinetic energy, so can say that energy which is related to the movement of particle, that is called what? Kinetic energy.
So this kinetic energy are different types, like that what translational energy, right? Suppose the gaseous molecule can move in the straight line in the zigzag motion like this one. So because of this kind of movement, what energy is created is called what translational energy, and this translational energy is the one kind of the kinetic energy because this energy created due to the movement of particles. Second one is what vibrational energy. When I'm considering the diatomic molecule like this one, so this is the diatomic molecule. Consider this. This molecule can vibrate in this way, bending and stretching. Otherwise, it can vibrate in this way, compression and expansion, like this one. So this kind of vibration, otherwise this kind of vibration, right now. So these are the energy which is created because of the vibration of the molecule. So this is called what vibrational energy. Third one is what rotational energy. When I'm considering this gaseous diatomic molecule, it can rotate from this axis. Full axis पे rotate कर जाएगा, right? ऐसे. So that is called what rotational energy. And one more kind of energy, this is called what electronic energy. As we know that every atom is made up by what protons, neutrons and electron revolve around the nucleus continuously, and because of this movement what energy is created is called what electronic energy. So lot of type of this kinetic energies are present in this substance. So this kinetic energy for the translation is called what U trans, like in this way. This translation energy considered as what U trans. This vibration energy considered as what U vibrate. Rotational considered as what U rot, U electron, electronic energy, ऐसा. So these are the different types of the kinetic energy. Now we consider this potential energy also. What is potential energy? See this. Potential energy. So because of the bonding, bonding in the sense what? When I'm considering like that H2O molecule. So we know that this H2O molecule is made up by what? 2 hydrogen and 1 oxygen. Here I'm considering this one H, 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 like this one. So we know that one hydrogen molecule can bind with the other hydrogen molecule with the hydrogen bonding. So because of this bonding, what energy create is called what potential energy. But this is what intermolecular bonding. One molecule combined with the other molecule, that is called what intermolecular bonding. I'm writing here. That is called what intermolecular bonding. And when I'm considering single molecule, and in this molecule, what bond is created? That is called what intramolecular bonding. So intermolecular bonding and intramolecular bonding. Within a molecule, between the molecule. Are you getting my point? This is what between molecule. This is what within molecule.
So this kind of energy is called what? Potential energy. So we can say that this intramolecular bond is what can consider what U intra, and this intermolecular bond is called what? U inter. So this is also the form of this internal energy. So total internal energy can consider as what? See this part, huh? U translational, U vibrational, U rotational, U electronic, U intermolecular, U intra. All this form of energy is considered what? Internal energy, in which these are considered what? Kinetic energy, and these are considered as what? Potential energy. So these two form of energy considered and called what? Internal energy. So actually you are observing here lot of kind of energies are present in the substance. Because of that, exact amount of internal energy of any substance cannot be calculated. Listen very carefully what I'm saying here. Suppose when I'm considering any system, then exact amount of internal energy cannot be calculated, because we don't know what kind of the kinetic, total kinetic and potential energies are present in this. So fortunately in thermodynamics, we don't require this exact amount of internal energy. In thermodynamics, we require the difference in internal energy from initial state and the final state. So just consider, if I am considering state A, which one is convert into the state B, and here its internal energy is U1 and here its internal energy is U2, then we can say that change in internal energy, can write here, change in internal energy delta U is equal to U2 minus U1. I hope you understood this part, and this is important part. This is required in the thermodynamic. No need to calculate the exact amount of internal energy of any system, right? So just we require the final internal energy and initial internal energy. Where we subtract, then we get the exact change in internal energy. Is it clear? Yes, sir. Note. So what I'm saying here, exact, right? Yeah, accurately. See, okay. Actual internal energy of a system can't calculate it, right? In thermodynamics, we required only change in internal energy, which can be determined, right? So change in internal energy. Right, this part. Let's scroll down. If you want to write this one, this can you can write also. From here you can write it.
Okay, you can take the screenshot also. Then this part. Have done. सर ये रेड लाइन जो नोट लिखा है उसका लास्ट नहीं दिख रहा है लाइन। ये लो, अभी ठीक है। हाँ सर। Okay, have done, beta. Good. Now see this. So we know that energy can be transferred, right? We know that a transfer of energy in form of heat or work. डे वन को ही बताया था, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर या सिस्टम टू सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट अदरवाइज वर्क। ठीक है, सो वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग द एनर्जी डेल्टा यू विल आल्सो अफेक्टेड। जैसे सपोज एक सिस्टम है, जरा समझो इसको बेटा। यहाँ पे सपोज हियर आई एम टेकिंग दिस सिस्टम, अब सिस्टम को बाहर से मैंने हीट दे दिया Q प्लस, तो डेफिनेटली जब मैंने हीट दिया तो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी था वो इंक्रीज कर जाएगा, या फिर बाहर से सराउंडिंग से वर्क हो गया सिस्टम पे, मतलब गैस कंप्रेस्ड हो गया। तो यहाँ पे W कैसा था, पॉजिटिव था, गैस कंप्रेस्ड हो रहा है। बाहर से हीट इसमें अंदर आ रहा है या फिर बाहर से सराउंडिंग से वर्क हो गया सिस्टम पे, तो दोनों केसेस में यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जस्ट अपोजिट, इन बोथ केसेस वी कैन से दैट व्हाट, डेल्टा यू इज व्हाट, पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, राइट। डेल्टा यू इंक्रीजेज, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आई एम गिविंग सिंबल लाइक दिस। और यहां से अगर सिस्टम में से हीट बाहर चला गया या फिर सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क कर दिया, तो दोनों केसेस में यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिस्टम की एनर्जी देख रहे हो, ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का चेंज किसकी वजह से हो रहा है, हीट या फिर वर्क, हीट या फिर वर्क। या तो सराउंडिंग से वो हीट ले ले, या फिर सराउंडिंग इसके ऊपर वर्क कर दे, या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो जाए, या फिर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर दे। दोनों केसेस में क्या होगा, इसके इंटरनल एनर्जी पे या फिर इसकी एनर्जी पे क्या होगा, इफेक्ट गिरेगा, राइट। सो सपोज कोई सिस्टम है, राइट, और उस सिस्टम में अगर मैंने 30 किलो जूल हीट ट्रांसफर किया, ऐड कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30 किलो जूल, राइट। जो इसका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन था वो 30 किलो जूल क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। इसका मतलब किसी भी सिस्टम को जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट इन योर बैंक, बैंक में आपने कुछ डिपॉजिट रखा है, अगर वहां पे आप बाहर से कुछ और पैसा डालेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, वो इंक्रीज करेगा। बट विड्रॉ करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जस्ट लाइक अ सिस्टम, सिस्टम की खुद की कुछ एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है,
बाहर से अगर हीट दे रहे हैं या फिर वर्क दे रहे हैं तो इसके इंटरनल एनर्जी पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है हीट या फिर वर्क के फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रहा है, देन इट इज व्हाट, डिक्रीजेस। इज इट क्लियर? So internal energy can increases or decreases. Now here most important part, delta U is a state function, right? And you know that what is the state function? It depend upon initial state of system and the final state of system, right? Not depend on path of the system, not depend upon path. That's what is called what, state function. So any function which depends upon the initial state and final state, then it is called what, state function, right? So what is the state function? Just pure attention about this. If I'm saying this state functions, what is the state function? So important part is what, state function consider as what, any function which depend upon the initial state and final state, right? Which depend upon what, initial state and the final state is called what, state function. Is it clear? So this thermodynamic may internal energy, change in internal energy is what, depend upon the initial state and final state, not depend upon the path. Then that's why it is called what, state function. Clear? चलिए आगे चलते हैं अभी. After completing this, next we discuss about the first law of thermodynamics. ये आपने नोट डाउन कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर we consider this first law of thermodynamics. This is also very most important part. Have noted? Okay. Now, this is the important part. First law of thermodynamics. Huh? Right. What is the first law of the thermodynamics? This first law of thermodynamics is totally depend upon what, conservation of energy. Right. This is what, simply conservation of energy. In short, it is say that conservation of energy. It means what? Suppose a system where its state is what, A, it will convert to the state B. During this conversion, total energy means what? Energy of surrounding as well as system, right? Energy of surrounding, can say that what, surrounding, plus energy of system equal to the energy of surrounding plus energy of system. Means what? During the conversion, during the change of the state of a system, its total energy remains constant. If I'm using word total, it means what? Surrounding and system. जरा मेरी बात को अच्छे से समझो बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो.
डेफिनेटली स्टेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी तो चेंज होगा ना, सिस्टम की एनर्जी तो चेंज होगा, बट ये सिस्टम की एनर्जी कैसे चेंज होगा? सिस्टम की एनर्जी, सपोज मैंने एक यहाँ पे एक सिंपल सा सिस्टम ले लिया और इसमें हमने क्या ले लिया, आइस। अब आइस जो होगा वो हम सपोज कि 1 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रहा है, राइट। अब सपोज 1 डिग्री सेल्सियस ये जीरो पे था, 1 डिग्री सेल्सियस मैंने बाहर से प्रोवाइड किया हीट। तो जब प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जो अंदर की सिस्टम की जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है ना यहाँ पे, आर में पॉइंट। तो सराउंडिंग और सिस्टम की एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस व्हाट, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट है, जस्ट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, राइट। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये नाइदर क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है। So we can say that statements. What are the important statements? Statements में पहला है, first one, energy of universe remain constant. Right? Energy of universe remain constant. Remain constant. Neither created nor destroyed. Second one is what? Total internal energy of an isolated system. Right. I'm using word this what? Total internal energy. Huh? Total internal energy of an isolated system, right? Total internal energy of an isolated system is constant. Constant. ठीक है। थर्ड है एनर्जी इज neither created nor destroyed. Right? It can change one form to another form. Right? Fourth point, when one form of energy disappears, then same amount of other form of energy will reappear. Right? This is the statements of the first law of thermodynamics. What are the important statements here? First, total energy of universe is remain constant, right? In isolated system, internal energy is what? Constant. Energy neither created nor destroyed, but one form of energy can change into the other form of energy. And when one form of energy will disappear, then same amount of other form of energy will reappear. These are the statements. On the basis of the statement, now we consider
formulation of the first law of thermodynamics. Otherwise, this is called what? Mathematical deduction of the first law of thermodynamics. Right. So now I'm writing here formulation of sorry, formulation of first law of thermodynamics. ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट कंसीडर क्या है इसका कॉन्सेप्ट देखो. Suppose a system A having initial internal energy U1, right? And after supplying Q amount of heat to system, right? हमने एक सिस्टम लिया, उसका जो इंटरनल एनर्जी दैट इज व्हाट Q, सॉरी दैट इज व्हाट U1, और उसमें हम लोग Q अमाउंट में हीट सप्लाई कर दिया, राइट? सिस्टम एंड W वर्क डन, W वर्क हो गया ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग. By surrounding, right? On the system by the surrounding. Therefore, its final internal energy becomes U2. क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब जरा देखो इसको, मैं इसको एलॉबरेट करता हूँ, कैसे क्या चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए. ये now in this case, just consider I am taking the system. Here I am taking this system. Right. In this system, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. That is better way. चलिए, एक सिस्टम है. इस केस में इसकी जो इंटरनल एनर्जी दैट इज व्हाट U1, राइट? U1 में हमने यहाँ पे इसको Q अमाउंट में हीट सप्लाई किया. आई एम गिविंग Q अमाउंट ऑफ हीट टू दिस. Q अमाउंट ऑफ हीट मैंने इसको सप्लाई किया और सराउंडिंग से वर्क कर दिया W, कंप्रेस कर दिया W वर्क, राइट? सो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? स्टेट बी में. राइट? कोई एक सिस्टम है A, वो कन्वर्ट हो गया स्टेट बी में. State A convert to state B, right? And after absorbing this amount of heat and W work on the system, now its internal energy become what? U2.
Are you getting my point? Final internal energy. So we know that changes takes place from the A to B. A कन्वर्ट हो गया किसमें? B में. यहाँ पे इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो क्या थी? U1 थी. प्लस मैंने इसको Q दिया और इस पे W वर्क हो गया, तो इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? U2 हो गई. क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अंडरस्टूड दिस पार्ट? देखो बेटा, किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है? चेंज हो सकती है. अगर मैंने बाहर से हिट किया तो वो इंक्रीज करेगी, और उस पर वर्क कर दिया तो भी इंक्रीज कर देगी. मैं दोनों काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हिट भी दे रहा हूँ, इस पे वर्क भी हो गया. तो फाइनल जो इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई वो क्या हो गई? U2 हो गई. तो U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस गिवन अमाउंट ऑफ हीट प्लस W वर्क, राइट, ऑन द सिस्टम. सॉरी, समझो जरा इसको. हाँ, एक सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी सपोज U1 है. अब मैंने Q अमाउंट में हीट इसको दे दिया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी. प्लस इस पे बाहर से वर्क हो गया, सराउंडिंग ने इसके ऊपर वर्क भी कर दिया, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो टोटल जो इसकी इंटरनल एनर्जी वो कितनी इंक्रीज हो गई? एक तो खुद की इंटरनल एनर्जी तो थी पहले से वो, प्लस उसमें जो हीट दिया और जो वर्क किया, सब ऐड कर दिया मैंने. अब इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी वो क्या हो गई? U2 हो गई. तो U2 किसके इक्वल होगा? इनिशियल इंटरनल एनर्जी given amount of heat and work done on the system by the surrounding. That whole addition is considered what? Final internal energy. क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा आपको? यस सर. वेरी गुड. तो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं, इसको जरा सा हम लोग जस्ट रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज. तो क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पे देखो, ले लिया मैंने U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेल्टा U. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हो गया? फॉर्मूला डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. जरा ध्यान से समझ लो इसको अच्छे से. ठीक है, समझ में आ रही चीजें? अब्दुल, अभिनव, प्रियल, रूबिशा, लैवरिन, श्रील, और कोई है? नो. अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. So here is the system. Its internal energy is U1. We supply Q amount of heat to the system and W work done by the surrounding on the system, right? Then its final internal energy become what? U2. तो U2 is equal to क्या हो जाएगा? U1 plus Q plus W, right? इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, तो U2 minus U1 is equal to Q plus W, otherwise delta U is equal to Q plus W. This is important part, right? अगर सपोज यही इनफाइनाइट सिमल स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है, देन दिस डेल्टा विल रिप्लेस बाय D. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. दिस डिफरेंस इज आल्सो डिफरेंट टाइप. मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने होते हैं? डेल्टा हो गया, ये डेल्टा हो गया, डी हो गया, या फिर हो गया, राइट ना? ये जो डेल्टा होता है कैसा होता है? ये कैलकुलेटिव होता है, रियल होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, राइट? ये कैसा होता है बेटा? कैलकुलेटिव होता है, रियल होता है, बट नॉट ऑब्जर्वेबल होता है. बट दिस इज ओनली कैलकुलेटिव, नॉट रियल, नॉट ऑब्जर्वेबल, राइट? और ये पूरा हाइपोथेटिकल हो गया. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन. ऐसा डिफरेंस जो सिर्फ कैलकुलेटिव हो, ना तो रियल में हो रहा है ना तो ऑब्जर्वेबल हो रहा है, राइट ना? दैट डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? डी. This is very very small and it is considered as what? Infinite simal. So if this changes takes place in infinite simal, then we can write here, I am writing here, if change is infinite simal, then first law of thermodynamics क्या हो जाएगा यहाँ पे? du, हाँ,
डेल्टा की जगह यूज कर डी, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, दैट इज द फॉर्मूला। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में कोरिलेट करूंगा डिफरेंट प्रोसेस से, राइट? दैट प्रोसेस इज व्हाट? isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric process, right? First law of thermodynamic in different process. First you note down this part, then we go for the first law of thermodynamic in different process. Have done? You can take the screenshot also, no problem. चलिए अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं डिफरेंट प्रोसेस में, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, चलो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए। ओके, नाउ सी दिस पार्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सॉरी, in various process, huh? Otherwise different process. जरा बड़ा अच्छे से समझ लो इसको, हाँ? क्या मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? चलिए फर्स्ट टाइम टेकिंग हियर इन आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, right? See what is happening in this isothermal process. देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, राइट ना? सो वी नो दैट इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 and delta u is equal to also 0. We know that, right? Now first law of thermodynamic क्या होता है? First law of thermodynamic क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w, राइट है? ये फॉर्मूला में पता है बेटा। तो अब देखो डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w और डेल्टा u इज इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, राइट? यू आर ऑब्जर्विंग हियर ना, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा u इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे q इज इक्वल टू माइनस w और माइनस q इज इक्वल टू प्लस w। बड़े अच्छे से समझो ये क्या मतलब निकला इसका बेटा, q और माइनस w। q मतलब हीट दे रहे हैं बाहर से क्योंकि प्लस है, और माइनस w मतलब क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड कर रहा है, और माइनस q मतलब हीट हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं सिस्टम से, तो w क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब हो गया यहाँ पे देखो इंडिकेटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पे जो मिला अपने को फॉर्मूला, वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग in isothermal process
process given heat to system equal to work done by the system on surrounding. मैंने ऐसा क्यों लिखा बेटा? क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हम बाहर से हीट दे रहे हैं सिस्टम को, तो ये निगेटिव हो रहा है। आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या हो रहा है? गैस एक्सपांड कर रहा है। गैस एक्सपांड मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, और अगर मैंने हीट रिलीज कर दिया तो इसका मतलब गैस कंप्रेस्ड होगा, सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम पे। ये समझ में आया आपको? प्लीज रिप्लाई टू मी, अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Very good. All of you understood? Yes, sir. Good. Very good. Take it. तो ये समझ में आ गया। अब मैं इसको ले रहा हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस में। जरा देखना यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है। कुछ है नहीं इसमें खास, बस आपको जरा सा दिमाग चलाना है और आराम से इसको कोरिलेट करना है। एवरीथिंग इज विल बी क्लियर, राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं बेटा। इन एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q इक्वल टू 0 होता है, कोई चेंज नहीं होता है इसमें। हीट तो 0 होता है ना, राइट? तो इस बेसिस पे हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है बेटा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बट Q इज 0, राइट? राइट? इन एडियाबैटिक प्रोसेस Q is equal to 0, therefore what we'll get here? Delta U is equal to W. क्या इंडिकेट करता है ये? This one is indicating if our process is adiabatic, then change in internal energy will be equal to the work done on the system by the surrounding. इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि W ही आ रहा है। सो वी राइट हियर indicating in adiabatic process change in internal energy will be equal to work done on the system, right? गैस क्या हो रहा है बेटा? कंप्रेस हो रहा है, ठीक है? ये भी चीज समझ में आ गई। अब मैं बताऊंगा आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। Sir, done. वेरी गुड। सी नेक्स्ट पार्ट। सर इतना बेटा बोल दीजिए ना। हाँ हाँ राइट। हाँ सर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, अब ये क्या होता है बेटा? देखो यहाँ पे, ठीक है?
ये थर्मोडायनेमिक का प्रीवियस लेक्चर जिसने भी नहीं अटेम्प्ट किया है यूट्यूब पे जाना है चैनल पे, आप देख सकते हो आराम से। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, दिस इज थर्ड लेक्चर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, सो यू नो दैट आइसोकोरिक प्रोसेस साइंस एकेडमिक चैनल पे आपने आप देखोगे वहां पे थर्मोडायनेमिक बोर्ड लेक्चर 01, राइट, L01, L02, L03 करके आप देख सकते हो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, in isocoric process we know that delta V will be zero, no change in the volume, that's what is called what isocoric process। वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसी को हम कहते हैं अब आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट, डेल्टा U is equal to Q plus W, otherwise we can write here delta U is equal to Q plus, अब देखो W इक्वल टू क्या होता है, माइनस P इंटू डेल्टा V। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही तो होता है W इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस P इंटू डेल्टा V, राइट। सिंस W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, यही फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा भी है प्रेशर वॉल्यूम वर्क में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P इंटू डेल्टा V। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट डेल्टा V इक्वल टू 0, in isocaric process delta V is equal to 0, therefore delta U is equal to क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे QV। V means what, at constant volume, right? So what indicating this, I'm writing here, indicating at constant volume, right, change in internal energy of system equal to given heat to system right, given heat to system। Q मैंने यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिया है, अगर Q पॉजिटिव है इसका मतलब हमने सिस्टम को हीट दिया, वो सिस्टम का हीट कहाँ पे यूज हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U के इक्वल, राइट है। सो इंटरनल इन दिस इक्वेशन इंडिकेटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द गिवन हीट टू द सिस्टम। जितना सिस्टम को मैं हीट दूंगा बाहर से, वो सिर्फ किस में यूज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, बिकॉज अवर डेल्टा V इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। नाउ एक और प्रोसेस है, दैट इज व्हाट, आइसोबैरिक प्रोसेस। मैं उसको भी ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसको जरा अरेंज कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेता हूँ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फोर्थ वन, आइसोबैरिक प्रोसेस। In isobaric process we know that pressure constant, हाँ, जहां पे सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द चेंजेस, ड्यूरिंग द कन्वर्जन, देन इट इज व्हाट कॉल्ड व्हाट, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब जरा देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक है, डेल्टा U is equal to Q plus W, otherwise we can write here delta U is equal to Q minus P into delta V, as we know that
W is equal to माइनस P इंटू डेल्टा V। ठीक है, P कांस्टेंट है, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर QP is equal to, इसको मैंने इधर ले लिया, QP means what? At constant pressure। QV means what? At constant volume। is equal to क्या मिलेगा अपने को? डेल्टा U प्लस P into delta V। This is our equation। I hope understood this part, right? अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? Indicating what? Indicating this, indicating given heat to system at constant pressure is equal to change in internal energy and pressure volume work, right? तो इसीलिए कहा जाता है QP is greater than QV। QV कहाँ पे यूज हो रहा है? सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी में, बट QP चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट्स व्हाट इज ग्रेटर देन दिस। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई बेटा? यस सर। वेरी गुड, नोट डाउन कर लो अच्छे से। ड्रिल समझ में आ रहा है बेटा साहब? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, हो गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक है जो मैंने बताया था, दैट इज व्हाट? एंथैल्पी। अब डिस्कस अबाउट व्हाट? एंथैल्पी। एंथैल्पी, यहाँ पे दो डेरिवेशन बताऊंगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा एग्जाम में, कोई ना कोई तो आता है। दैट इज व्हाट आल्सो इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट डाउन दिस पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। एंथैल्पी, so how to define this enthalpy? What is this enthalpy? Enthalpy क्या होता है, right sir? The enthalpy is the what? Sum of the internal energy and pressure volume work energy। ठीक है, we can say that enthalpy of a system enthalpy of a system is the sum of internal energy of a system and the energy equivalent to
equivalent to pressure volume work. Right? Pressure volume work energy. So on that basis, we can say that what is this H? So can say that therefore enthalpy H is equal to internal energy plus pressure volume work energy. That is the definition of enthalpy, right? Enthalpy क्या होता है बेटा? That is the sum of internal energy and pressure volume work energy. किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है और उसके जो प्रेशर वॉल्यूम का वर्क एनर्जी है उसको हमने इक्विवेलेंट को अगर ऐड कर दिया दैट विल कम व्हाट? एंथैल्पी. सो H is equal to U plus P into V. Right. Now change in enthalpy. So now we discuss about what? Change in enthalpy. Change in enthalpy. ठीक है. एंथैल्पी में चेंज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो जरा कंसीडर करते हैं. एक स्टेट लेते हैं ए और एक कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी में. ठीक है. तो ये सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है ए से बी में. यहाँ पे जो इसकी एंथैल्पी है दैट इज व्हाट? H1 और यहाँ पे जो एंथैल्पी है दैट इज व्हाट? H2. दिस इज कॉल्ड व्हाट? इनिशियल एंथैल्पी and this is called what? Final enthalpy. Therefore change in enthalpy क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? Therefore change in enthalpy delta H is equal to final enthalpy H2 minus initial enthalpy. That is what? H1. So H2 minus H1. तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? अपना फॉर्मूला आ गया डेल्टा H is equal to H2 minus H1. ठीक है. इतनी बातें आगे समझ में आपको. इनिशियल और फाइनल में ये क्या चेंजेस हो गया. ठीक है. अब इसी को हम लोग डेरिवेशन से करते हैं. ठीक है. देखो. तो यहाँ पे अगर सपोज हमारा फर्स्ट है इनिशियल एंथैल्पी, राइट ना? तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? जरा देखना यहाँ पे. तो वी कैन राइट हियर H1 is equal to what? U1 plus P1 into V1. और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? H2 is equal to what? U2 plus P2 into V2. राइट है. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वैल्यू को, राइट? सो व्हाट विल गेट हियर? Therefore we can say that delta H is equal to, देखना जरा ध्यान से, U2 P2 V2 minus U1 plus P1 V1. ये ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को? U2 plus P2 V2 minus U1 minus P1 V1. इसको हम लोग एक अरेंज कर लेते हैं. तो दैट इज व्हाट? U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. I hope understood this part. इतनी बातें समझ में आ गई? Yes, sir. वेरी गुड. अब जरा देखो यहाँ पे, इसी को मैं और एलाबोरेट करता हूँ. तो फॉर्मूला क्या आ गया अपना? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा V. क्या समझ में आया आपको? ठीक है. अच्छा देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर
अगर सपोज प्रेशर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? P1 is equal to P2 is equal to P. तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P into delta V. This is the formula which used for the calculation. Delta H is equal to delta U plus P into delta V. I hope understood this part. Very simple calculation. ठीक है, अच्छा अब जरा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखना यहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस। हाँ, तो क्या फॉर्मूला था अपना? QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V था, राइट राइट। अब सपोज यहाँ पे भी वही है ना, और यहाँ पे भी तो वही है। दिस इज व्हाट इक्वेशन 1, जस्ट कंसीडर हियर। अगर मैंने इसको x कर लिया और इसको y कंसीडर कर लिया, तो कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन x एंड y, ठीक है, दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो कैसे दैट डेल्टा H इज इक्वल टू QP, इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द डेल्टा H एंड चेंज इन एंथैल्पी। आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट। आप को रिलेट कर पा रहे हो ये चीजों को? सिंपल से डेरिवेशन है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कर पा रहे हो ना कोरिलेट? यस सर। गुड। Lavrin, what about you? Understood? Yes, sir. Good. Abdul, Yes, sir. Rubisha, Yes, sir. very good. चलिए, क्योंकि अभी इसी को मैं और इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है उसको कोरिलेट करने जा रहा हूँ। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। यहाँ पे देखिए डेल्टा एच इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नोट डाउन हो गया ये। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। So now here I am going to explain relationship between very most important derivation,
आप अगर देखोगे 10 साल का पेपर निकाल कर बेटा तो हर साल हर अल्टरनेट ईयर राइट आता ही है। So this is what relationship between delta H and delta U for chemical reaction। मैं कोरिलेट करके बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बट सिंपल है राइट। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने अभी डेरिवेशन करा है यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये भी तो रिलेशन ही है, अभी आपने जो बताया फॉर्मूला दैट इंडिकेटिंग आल्सो रिलेशन, यही तो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू डेल्टा वी, बट दिस इज नॉट इंडिकेटिंग द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन राइट। सो अगर डेरिवेशन आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब हम करेक्शन करने बैठते हैं तो मुझे मिलता है कि अगर रिलेशन आया तो बहुत सारे बच्चों ने यही डेरिवेशन कर दिया, बट दैट इज रॉन्ग। हाँ, ये डेरिवेशन आपको नहीं करना, अभी जो करा रहा हूँ वो रिलेशन के लिए। ओके, दिस इज द डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर। ये रिलेशन अगर आएगा कि चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर डिराइव द इक्वेशन, देन यू विल डिराइव दिस वन। बट अभी आएगा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, देन यू विल गो फॉर दैट इक्वेशन। इज इट क्लियर? अच्छे से क्लियर करके रखो इसको, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो नाउ हाउ टू डिराइव इट। सो वी नो दैट जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, सो एट कांस्टेंट प्रेशर change in enthalpy of system is क्या है यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। यहीं पे मैंने खत्म किया तो यहीं से स्टार्ट करता राइट। सो एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा। ठीक है, इसी को हम एलोबरेट करते हैं। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो where delta V is equal to what? V2 minus V1, change in volume। so हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे therefore delta H is equal to delta U plus P into V2 minus V1, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इसको डेल्टा H is equal to डेल्टा U। ठीक है, डेल्टा H is equal to डेल्टा U, देखना जरा यहाँ पे प्लस PV2 minus PV1 राइट, PV2 minus PV1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अब जरा मेरी बात को समझो। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ आपको आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सो सपोज reactant and product
or right, we have ideally, right? Therefore, according to ideal gas equation, PV is equal to nRT. ये तो होता है ideal gas equation, PV is equal to nRT. So therefore we can write here PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. राइट है ना? फॉर फर्स्ट गैस N1 के लिए, रिएक्टेंट के लिए N1 हो गया, प्रोडक्ट के लिए क्या हो गया, N2 हो गया. तो PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू, राइट? Substituting the value, what will get here? डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? डेल्टा U प्लस, ध्यान से देखना, N2 RT माइनस N1 RT. आई होप यू अंडरस्टूड. यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया N2 RT एंड N1 RT, राइट है? चलिए अब यहाँ से RT हम कॉमन ले लेते हैं, तो व्हाट विल गेट हियर? मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. अब देखो यहाँ पे, सो देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 RT. RT कॉमन ले लिया मैंने, आपको समझ में आ रही होगी चीजें, राइट ना? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, राइट है? नोट डाउन दिस पार्ट. अब मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज रिलेटेड टू द केमिकल इक्वेशन. डेल्टा H RT, राइट ना? जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट. देखो यहाँ पे अभी मैं कैसे इसको रिलेट करता हूँ, कैसे करता हूँ, ध्यान से समझना. इसको मैं यहाँ पे डेल्टा N G भी बोल सकता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. तो देखो वेयर डेल्टा N इज difference between number of mole gaseous product and the number of moles
number of moles of gaseous reactant. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जरा समझ लेना इसका। हाँ, क्या मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, अब कंडीशन क्या हो जाता है इस पे और कैसे इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं। तीन कंडीशन यहाँ पे आते हैं, कैसे कैसे। सीरीज फर्स्ट वन, if delta n is equal to positive, then delta h is greater than delta u। ये रिलेशन है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा यहाँ पे। if delta n is equal to negative, then delta h is less than delta u, and third, delta n is equal to 0, delta u। ये कंडीशन जरा समझो बेटा, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जरा सा दिखना। मैं भी शिफ्ट करता हूँ, टेंशन मत लो, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहला कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा 12 और 10, क्या ये इक्वल है? नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब ये इक्वल होगा। मतलब ये 12 जो है वो 10 से क्या है, बड़ा है। सेम थिंग इज हियर, व्हेन आई एम एडिंग समथिंग इन डेल्टा यू, जरा ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआरटी, डेल्टा एनआरटी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा यू में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, तब ये डेल्टा एच के इक्वल हो रहा है, जस्ट लाइक अ 10 एंड 12। so we can say that delta h is greater than delta u. In other case, if I'm saying here 12 is equal to 14, it is not also equal, but when we subtract something then it become equal। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा यू से कुछ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब ये डेल्टा एच के इक्वल होगा। इन दिस केस वी कैन से दैट डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। और जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई, इट मींस व्हाट, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, देन दिस होल थिंग बिकम 0। अगर डेल्टा 0 आ गया तो डेल्टा एनआरटी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? All of you understood this part? Yes, sir. Very good बेटा, very good. Just note down this part। हाँ, अभी आप नोट डाउन करो आराम से, मैं थोड़ा सा करता हूँ। Yes, now note down it। I've done। So 1 minute. Write it, write it. Take your own time, no problem।
चलिए हो गया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। हाँ, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सी दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर दिस इक्वेशन। दूसरा लेता हूं मैं। चलिए दो इक्वेशन है, इन दोनों के लिए आपको बताना है डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के लिए रिलेशन बताना है। चलो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले कभी भी ये रिलेशन बताना है तो आपको डेल्टा एच फाइंड आउट, डेल्टा एन फाइंड आउट करना है, राइट ना। तो फॉर दिस इक्वेशन डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, आप बताओ मुझे क्या होता है डेल्टा एन जी? नंबर ऑफ डिफरेंस इन द बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने, दिस कोएफिशिएंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ मोल, राइट, NH3। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, दैट वुड बी व्हाट NH3। तो ये NH3 के 2 मोल है, अमोनिया के 2 मोल है गैसियस स्टेट में, दैट इज व्हाट 2 माइनस प्रोडक्ट में यही है, रिएक्टेंट में कितना बेटा यहाँ पे 1 मोल और ये 3 मोल, तो दैट इज व्हाट 1 + 3। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 2 - 4 = -2। तो आपको दिख रहा है ये डेल्टा एन की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है ना। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 8 निगेटिव। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव आई तो क्या होगा, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, राइट है। ये इक्वेशन के लिए समझ में आ गया आपको? Yeah. चलो कैलकुलेट फॉर सेकंड वन एंड टेल मी द आंसर। कैलकुलेट फॉर सेकंड वन एंड टेल मी द आंसर। What is the relation between delta H and delta U for the second one? सर बोलो। सर जो पहले वाला जो किया था ना, आप एक बार वापस समझाना उसका कैलकुलेशन पार्ट। हाँ देखो कैसे बताता हूँ मैं। देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज व्हाट अमोनिया, और अमोनिया के आगे अमोनिया गैसियस स्टेट में, और इसके आगे कितना लिखा है 2, मतलब इसके मोल कितने हो गए 2। तो जो आप पता है ना ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कितना है 2 है। रिएक्टेंट में चलते हैं, रिएक्टेंट में क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल अगर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, और यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 कितना हो गया बेटा 4। तो रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल गैसियस रिएक्टेंट कितने हो गए 4, और प्रोडक्ट कितना हो गया 2। तो 2 - 4 = -2, राइट है ना। 2 - 4 = -2। और डेल्टा एन की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो हमने लिखा है डेल्टा एन की वैल्यू अगर निगेटिव है तो डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, राइट है ना। समझ में आया? यस सर। गुड। तो टेल मी द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर सेकंड इक्वेशन। क्या मिलेगा सेकंड इक्वेशन के लिए, टेल मी। सर मेरे को आंसर -1 आ रहा है। और कोई ट्राई करो, Sir. बोलो अभिनव।
is your answer? Sir, -1. Real, Rubisha, Ravrin, all of you give the answer. -1. All of you give the answer. Sir, -1. -1, sir. Okay. Okay, now see this. मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि प्रोडक्ट में कितना है, नंबर ऑफ मोल 1 है और रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। Sir, ये है ना? 0. हाँ बोलो। Sir, 0 आएगा ना फिर? Yes, because this is what solid state, ये ध्यान देना आपको, और मैंने स्टेटमेंट लिखा है ओनली गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया बेटा, यहाँ पे सिर्फ गैस के लिए, ओनली फॉर गैस, दैट्स व्हाई राइटिंग व्हाट G। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सॉलिड को कंसीडर ही नहीं करना है, तो ये 1 मोल और ये 1 मोल हो गया, तो डेल्टा Ng कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 1 - 1 is equal to 0. Therefore we can say that delta H is equal to delta U. ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। Understood this part? Yes, sir. Very good. चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।